हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, अगर आप भी एसी टेक्नीशियन हैं या HVAC टेक्नीशियन हैं और गल्फ जाना चाहते हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि आपको गल्फ के लिए किस तरीके से आपको इंटरव्यू लिया जाता है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन किया जाता है और आपको कैसे जवाब देना है और किस तरीके से आपको जवाब देना है, तो ये जानने के लिए प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहें। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इसका पार्ट 1 भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो गाइज, मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि जैसे कि आप लोग को अगर पता होगा तो ठीक है, नहीं पता होगा तो आप जान लीजिए कि जो है गल्फ में अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको सारे सवाल इंग्लिश में किए जाते हैं। तो आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप जवाब जो है इंग्लिश में दे सको और अपने क्लाइंट को समझा सको। तो गाइज, चलिए मैं सवाल बताता हूँ और उसका जवाब भी मैं बताऊंगा। तो क्लाइंट आपको कुछ इस तरीके से सवाल कर सकता है, वाई कंप्रेसर गेट्स डैमेज। तो आपको कुछ इस तरीके से जवाब देना है, सर देयर आर सो मेनी रीजन सो कंप्रेसर कैन गेट डैमेज, लाइक कंडेंसर कॉइल डर्टी, टू मच और टू लो रेफ्रिजरेंट इन द सिस्टम एंड टू लो ऑयल इन द कंप्रेसर एंड क्लॉग रेफ्रिजरेंट लाइन और plug metering device or plug dryer filter and electricity problem. These are the reasons so compressor can get damage. तो आपसे क्लाइंट इसी पे पूछ सकता है, ओके सो फॉर एग्जाम्पल कंडेंसर इज डर्टी, सो हाउ कंप्रेसर कैन गेट डैमेज। तो आपको एक्सप्लेन करना है कि जो अगर कंडेंसर डर्टी है तो किस तरीके से जो है कंप्रेसर डैमेज हो सकता है। तो आपको इस तरीके से कुछ जवाब देना है। So for example, condenser coil is dirty. So in this situation, refrigerant pressure will be high and condenser fan cannot remove refrigerant heat properly. So this heat will affect compressor because compressor is running, for example, compressor is running 3-4 hours and this heat will touch with the compressor, and in this situation compressor can be heat up and compressor is running 3 to 4 hours. So in this situation compressor mechanical parts can get damaged or compressor terminal can be blast and compressor terminal can be burned. So that is why if condenser coil is dirty, so compressor can get damaged. So आपसे जो है इंटरव्यूअर कुछ इस तरीके से दोबारा पूछ सकता है, so how compressor can get damaged with the electricity problem. So you have to explain like this, sir, for example, there is under voltage or there is high voltage, whatever compressor voltage is required, there is not voltage available in the control panel, or there is any power missing, or there is something problem with the voltage. So in this situation compressor can get damage. For example, compressor required 220 voltage or 440 voltage, so there is only 380 voltage or there is only 300 voltage. It's mean there is voltage problem, means it's mean for example compressor require 480 voltage and there is coming only 300 voltage. It's mean there is under voltage. So in this situation compressor can get damage. And for example compressor running with the 480 voltage and there is coming above 500 voltage. So in this situation compressor can get damaged. So if electricity voltage can be up and down and high or low, so in this situation compressor can get damaged. तो आपको कुछ इस तरीके से आपको जवाब देने हैं। तो अगला सवाल आपसे जो है क्लाइंट पूछ सकता है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम इफ सक्शन लाइन इज कवर्ड बाय आइस। तो आपको समझना है, कोई भी आपसे सवाल कर रहा है अगर क्लाइंट, तो आपको ये समझना है कि वो सवाल आपसे क्या कर रहा है। तो आपको जवाब कुछ इस तरीके से देना है, डर्टी एयर फिल्टर, dirty blower, dirty evaporator coil, set point is very low and as air conditioning area is too big and air conditioning is very small and refrigerant is too high or refrigerant is too low in the system and blower capacitor can be weak. So in this situation suction line covered by ice. सो कुछ इस तरीके से आपको जवाब देने हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक ही है और फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।